Salam, Mrs. Zara. How are you doing today? Walaikum assalam. I'm fine, just a little tired. Yeah, and how is your weekend going so far in Valencia? Actually, it was kind of disaster because my baby didn't let us sleep last night. Oh, I understand. Hmm. What I say, I was taking him to park and playing with him, and I came back home almost half an hour ago. Oh, so he might be tired, I guess. He's with my husband now. I think he's sleeping. Oh, nice. Okay. So, first of all, thank you so much कि आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए. I really appreciate it. Actually, I thank you for inviting me, and it's an honor. All right. Because the reason is I was been looking forward to this because there is so much to talk about, and I'm so glad that we finally met. I'm also so happy कि मुझे ये platform मिला है कि actually I speak about the things that I like, my interesting topics. Right. So even Yasmin, even I love to talk as much you do. In fact, when I'm around an author, or you may call it, if I'm around an intellectual person, I tend to talk very much, right? Otherwise, I'm usually very quiet in the room. I'm the same. All right. So actually, I was been looking to your journey. So how did you started your journey? Like, what it came from clinical psychologist in Islamabad to suddenly move to Europe doing your research. I think it's a long story. Personally, I wanted to try all the things that I liked in my life. For example, when I was a teenager, Hmm. तो मैं एक ईरानी स्कूल में थी. There we had an educational psychologist. So I was always in her room because I liked her. मैं सोची थी she knows everything. She knows me and she's my comfort zone. Okay? तो Hmm. उनको देख के मैं सोचती थी कि I want to be like her. इवन तब मुझे इतना भी नहीं पता आई मे बी आई वाज शायद 12-13 years old. तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा टू बिकम लाइक हर. बट आई वांटेड टू बी दैट पर्सन. खैर थ्रू आउट माई जर्नी क्योंकि आई हैड प्री मेडिकल आई स्टडीड प्री मेडिकल. तो आई लव्ड स्टडीइंग ब्रेन. मैं यूट्यूब में वीडियोस देखती थी और लाइक डेड बॉडीज के जो ब्रेन होते हैं मैं उनकी वीडियोस देखती थी एंड आई डिडंट फील डिस्गस्टेड. मैं कहती मैंने ब्रेन पढ़ना है. फिर मैं रिसर्च करती थी कि न्यूरो सर्जन बनने के लिए आपको कितने साल पढ़ना होगा. एंड आई वाज सरप्राइज्ड बाय 30-35 एंड ऑल दैट. So these were the two things that I really like: clinical psychology and at the same time brain. But then I don't know you know about Pakistan or not, लेकिन वहाँ पे न्यूरोसाइकोलॉजी या न्यूरोसाइंस इस तरह जो है बैचलर में एज सच ऑप्शंस नहीं है. या कम से Okay. कम नहीं थे, इतने विजिबल ऑप्शंस नहीं थे मेरे लिए इस्लामाबाद में. तो आई वेंट टुवर्ड्स साइकोलॉजी. मुझे लगा न्यूरो साइंस शायद बहुत मुश्किल है, कुछ बहुत अजनबी है, मैं नहीं जा सकती उस तरफ. मैं काइंड ऑफ भूल भी गई थी, बस मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ थी. एंड Okay. देन ड्रीम वाज टू हैव माय ओन ऑफिस और मैं जो क्लाइंट्स लूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँ. एंड आई डिड दैट फॉर 4 years. लेकिन फिर जब मेरी शादी हुई एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर पीएचडी पोजीशंस. मेरे हस्बैंड मुझे रिकमेंड करते थे बिकॉज वी वांटेड टू मूव टुगेदर. तो मैंने देखा कि यूरोप में मैं वो इंटरसेक्शन देख सकती हूँ साइकोलॉजी और ब्रेन का. एंड आई Hmm. सेड दिस इज व्हाट आई वांट. A deadly combination. यस. So, I mean, you wear so many hats. I can literally count on my fingers. Researcher, therapist, author, founder as well. So definitely, we will be speaking about the books which you wrote. We will be talking about the organization which you founded as well, right? So, which of this role, like researcher, therapist, author, founder. So, which of this role is like when you wake up in the morning, you feel like real Yasmin? अगर मैं अभी बोलना चाहूँ आफ्टर आई बिकेम ए मॉम. सो बिकॉज माई अलार्म इज माई बेबी क्राइंग. सो व्हेन आई Yeah, I वेक अप understand. आई से आई वांट टू बी ए गुड मॉम. ये क्यों रो रहा है, क्या बना के दूं, शुड आई चेंज हिज डायपर, अभी मैं क्या करूं. दिस इज माई मेजर रोल दैट आई बिगिन माई डे विद. Hmm. लेकिन अगर कोई मुझसे मेरा प्रोफेशन पूछे और उस तरह मैं खुद को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो बेसिकली इट इज़ रिसर्चर. बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई इन्वेस्टिगेट. अपने जहन में भी सोच रही होती हूँ कि इसका इसके साथ क्या कनेक्शन होगा, अगर ऐसा हो तो फिर क्या इसका रिजल्ट निकलेगा. सो आई थिंक इट्स मोर रिसर्चर. Okay. And if I put it across, like, which is the most challenging role according to you?
Actually, my professional life being a researcher, because in research, you have to ask for fund, you have to search for a team, you have to persuade a lot of people. ये जो मैं बोल रही हूँ ये ठीक है. You have to tell everyone that I'm not insane. So Hmm. basically, that's really tough. But Yasmin, you lived across many cultures, if I'm not wrong, starting from Pakistan, then Iran, and now Spain, right? So, which places changed you most mentally? And second thing is like what you have adapted from those cultures. Actually, it was Spain, and let's say Europe, because I've never been to Europe before my wedding. So the first time I came here, I felt like I'm in another planet. Hmm. लोगों का रहन सहन, कपड़े पहनना, बोलना, the things that they found happiness in, how chill they were, how much they didn't care कि अगर हमें कोई देख रहा है, they didn't care. जिन सोसाइटीज में मैं रही हूँ वहां पे हमें शायद बचपन से ये सिखाया गया है लोग क्या कहेंगे. You have to Correct. behave yourself. सब देख रहे हैं हमें, and in fact सब देखते भी हैं. But here everyone is living their own life. Even if you stare at someone, they're like, why are you staring at me? तो इसका सबसे जो ग्रेट इफेक्ट हुआ है मेरे लाइफ पे, फर्स्ट डाइट एंड देन फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज व्हेन आई केम हियर आई सॉ एवरीवन इज रनिंग इन Hmm. स्ट्रीट. कुछ भी पहन के वो भाग रहे होते हैं. और जिस तरह हम खाना खाते हैं ईरान पाकिस्तान में, दिन का खाना जो होता है, लंच, डिनर और Hmm. अच्छा खासा नाश्ता, ऐसा कुछ भी इधर नहीं होता. दे ईट लिटिल बिट बट विद हाई प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन. इतना ज्यादा नहीं खाते जितना हम खाते हैं. दीज वर टू थिंग्स दैट आई अडॉप्टेड इन माई लाइफ एंड आई लव्ड इट. Correct. So when I was just evaluating your profile before our session, so it was like uh, you definitely surrendered the Pakistani passport, then you married Iranian person, and now currently you living in Spain, right? So इतना सब कुछ होने के बाद भी you never miss your home, whether it could be Iran or whether it could be Pakistan. I miss my home in Iran a lot. In fact, I was in Iran 2 months ago. Okay. Because I was raised in Iran. मेरा बचपना सब उधर ही गुजरा. My parents, after 10 days after they got married, they went to Iran. तो मेरे memories में ईरान आता है ज़्यादा. पाकिस्तान is more like a temporary station, although it was 10 years. लेकिन मुझे फिर भी वो एक trip लगता है. Correct. लेकिन रिश्तेदार कभी याद आते हैं. I miss इस्लामाबाद. But I think मेरे personality के मुताबिक, मेरे lifestyle के मुताबिक, पाकिस्तान was judging me a lot. So I like to visit that place, लेकिन मैं ईरान को ज़्यादा मिस करती हूँ because maybe my husband, my parents, बचपना, everything was there. So, you know. Okay, but Yasmin, I need to say that you speak very well Urdu. Okay, so do you speak or do you communicate with your husband in Urdu or Farsi? My husband knows only three words in Urdu, gosht, ji, and nahi. And he learned this in restaurants. He doesn't know anything Okay, about Urdu. okay. So how do you like communicate? Whether it could be in Farsi or mostly in English language? All Persian, because I used to speak in Persian with my in home with my siblings, with my mother. Mm-hmm. Everything was Farsi from my childhood. Oh, okay, nice. So I think you only get an opportunity to speak in Urdu in front of the camera, which is your content, if I'm not wrong. Yeah, and most of the time I cut my videos because of the Muzakkar Monas mistake. I start laughing that that was so stupid. And even now that I'm talking to you, I might do a lot of mistakes in this Muzakkar Monas and grammatical stuff of Urdu. Okay. I used to speak Urdu actually not a lot, but sometimes with the guests. I used to live in Damascus for many years, so guests used to come to our home and we used to speak Urdu. But majorly, I learned it from university, college, and my Okay. friends. Mm-hmm. I think if I'm not wrong, Urdu is more better as compared to Indians. पाकिस्तानी की उर्दू और अच्छी लगती है. We Indian also speak, but we mostly match or add Hindi as well because Hindi and Urdu kind like it sounds very similar basically, but it has different meaning. Um, I don't know. I basically like two languages the most. First is Persian and second is French because both of them are poetic. Okay. As if we are listening to a poetry. Here, when I go to my husband's friends, who is from Pakistan, and I talk to my husband, he says
It's a very sweet language. I don't know. I just want you to talk, you know. But for Urdu, I love Urdu because it has a lot of Persian words too. I um, I find Urdu and Hindi similar. Correct, You know, correct, I speak correct. multiple languages, तो मुझे एक category में लगते हैं. I don't Right. find much difference. Even if I get an opportunity, so definitely I would love to choose French over Farsi. All right. So beside your studies, which is your favorite part of living in Spain? Um, First, everyone is so chill here. They spend most of their time in streets. All of them are gathered together and they just spend together. They're so social. Okay? Hmm. And the second thing is this is something like it's related to the government, the health system, because I we pay a small amount of money every month to insurance Okay. company. All the Mm-hmm. medical services are free. So I had my baby delivered in the best hospital, his care, vaccines, everything. So I don't know if I could have this option in Pakistan or any other country. There, everything is so expensive if you want to go to the best hospital. So I think the healthcare system is so good here. All right. So, Yasmin, when I was doing some sort of evaluation before the interview, so I came across one thing, which is you mentioned that you fell in love with writing at the age of 12 because of Oliver Twist, right? And you even wrote book as teenager that were never been published. And how does it feel now as a researcher to finally reconnect with that 12 years old Yasmin through your new books? Actually, at that time, I didn't have the opportunity to publish. अभी सब कुछ बहुत developed है, AI है, everything is Mm-hmm. तब नहीं था. Once I was walking with my husband, I told him, "Do you know कि मैंने 3 books लिखी थी, and one of them was so scary that जब मैं खुद पढ़ती थी तो मुझे डर लगता था." So he was laughing. What happened to those books? मैंने कहा, I don't know. I have one of them, and most of them are lost, and they were not worth publish. अभी मैं publish नहीं कर सकती. He said, "Why don't you start writing now?" So that was like, why not? तब I started writing the outline of my first book and then second and I started writing. अब मैं जैसे मैं walk भी कर रही हूँ मुझे कुछ जहन में आ रहा है फौरन I started writing Okay. points. So even I have that same pattern. If something comes in the mind, we used to like write it down, the highlights or the pointers, and फिर देखेंगे कि क्या करना है इसका. It is like that. So and also when you mentioned earlier in this conversation about your title, your first book title was The Millionaire Psychologist, right? So I when I was just reading it, so suddenly it came in my mind that uh, as we are traveling all the way from traditional era to modern era. And for me, this is a modernized era, which you mentioned AI era. So it was a perfect name, the millionaire psychologist. And when I was just reading about it, will AI empower or erase human therapists? Do you think AI can replace psychology? Because even I was thinking this question to me, then I was like, no, let's ask you basically this question. The book is too detailed, but if I want to give a summary, and as a psychologist, शायद अगर कोई और psychologist ये देखे तो उसको गुस्सा भी आए और अजीब भी लगे कि that why am I saying that? Hmm. To a great extent, they can and they are replacing therapists. इस तरह के AI tools बन रहे हैं, बन चुके हैं और बनने चाहिए that Hmm. are diagnosing people. Okay, और इतना मुश्किल नहीं है. I don't know how much, I don't know your field, that how much knowledge you have about programming. एक AI टूल बनाना जो कि डायग्नोस कर सके डिसऑर्डर्स को, मैं उस पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करूँ बिकॉज आई नो पाइथन, आई कैन मेक वन. तो इट्स समथिंग नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. और फिर Hmm. ट्रीटमेंट के लिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर एक टीम जो कि होंगे यकीनन समवेयर इन वर्ल्ड इस पे बैठ के काम करे तो यस थेरेपी भी हो सकती है. दिस इज अ सैड न्यूज फॉर मैनी पीपल, नॉट फॉर मी, जिनको लगता था कि साइकोलॉजी सिर्फ ये है कि आप किसी को बुलाओ और डायग्नोज करो और ट्रीट करो. Correct. उनके लिए सैड न्यूज है, लेकिन एक्चुअली टू ए ग्रेट एक्सटेंट इट डज बट नॉट कंप्लीटली. Okay, so like how AI can actually empower human therapists instead of erasing them. अगर
साइकोलॉजी कम्युनिटी, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी हम्म कमांड हासिल करें एआई पे, एंड दे बिकम द बॉस ऑफ एआई। हम्म दे स्टार्ट कंट्रोलिंग इट, उसको इस्तेमाल करें अपने टूल्स में। जैसे मैंने अभी कहा, मैं अगर टाइम लगाऊं तो मैं शायद ऐसे टूल बना सकूं जो डायग्नोज कर सके। तो व्हाई नॉट मैनी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत अगर प्रोग्रामिंग पढ़ लें, इट्स नॉट डिफिकल्ट, कोई कोर्स कर लें, तो इस तरह एआई उनको एक्चुअली मिलियनर बना सकते हैं। जब आप इस तरह के ऐप बनाते हैं, आप इस तरह के बिजनेस बनाते हैं, हम्म helps you a lot to earn big, you know. In your book, you wrote about hybrid psychologists, right? Who uses both feelings and computer code. Since you are both researcher and a therapist, how do you personally balance data with your heart? Okay, okay. एक्चुअली मुझे शॉक कब लगा, व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर पीएचडी। आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम लाइक 100 200 यूनिवर्सिटीज। आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू नेदरलैंड्स। तो आई मैंने कहा मेरे तो ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, मैंने रिसर्च भी किया Hmm. है, तो माय हस्बैंड, मैं इतनी नालायक नहीं थी, आई हैव वेरी गुड मार्क्स एंड आई एम एजुकेटेड, आई हैव डन मास्टर्स, तो मैं रिजेक्ट क्यों हो रही हूँ? When I started seeing their criteria, they wanted Python, they wanted programming, they wanted R, they Okay. wanted प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि पाकिस्तान में तो पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे बैचलर लेवल से ही साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं। नाउ व्हेन यू गो टू एनी यूनिवर्सिटी हियर, दे एक्सपेक्ट कि आपको प्रोग्रामिंग बेसिक हद तक आती हो। तो हमने तो ये सब Hmm. नहीं पढ़ा था। तब यहाँ आके मैंने सोचा कि घर में बैठ के आई हैव टू स्टार्ट लर्निंग पाइथन। माय हस्बैंड आल्सो गेव मी सम कोर्सेज, और मैंने ऑनलाइन भी कोर्सेज लिया, और मैं प्रैक्टिस करने लगी इन लैपटॉप में, छोटे छोटे टूल्स बनाने लगी विद द हेल्प ऑफ पाइथन। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में आर का कोर्स ज्वाइन किया, वो मैं रिसर्च के लिए एसपीएसएस समझाता था। सो हियर आई स्टार्टेड डेवलपिंग टूल्स। एक्चुअली मेरा थीसिस भी जो है पीएचडी का, वो यही है कि अल्जाइमर से रिलेटेड मैं एक टूल बना रही हूँ। इस तरह जब मैं थेरेपी तो अभी मैं नहीं ले रही, लेकिन ये जो मुझे डीएम्स आते हैं रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, मैं इनको सुन के सोचती हूँ कि इसके लिए मैं क्या एआई सॉल्यूशन ढूंढ सकती हूँ। सो Correct. नाउ दिस इज द हाइब्रिड थिंग। Nice, very nice. Even definitely in regards to AI, even we also came up with multiple things. Um, See, AI एक ऐसी चीज है, जहां तक मुझे पता है, आप कितना काम आसान कर सकते हो दूसरों का, राइट? सो फॉर एग्जांपल, we are working on digital alim. Digital alim is also an AI, because nowadays we are into this modern era. So it's digital alim को मैं इस तरह से बता सकता हूँ, that's an Islamic chatbot, right? So we have taken the books, all those research and the books which we have uploaded, because AI पे अगर आपको कुछ चीज करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू ट्रेन दैट एआई मॉडल, राइट? अनलेस यू वोंट बी एबल टू ट्रेन योर एआई, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द आउटकम। तो हमने वो सारे बुक्स को ट्रेन किया फॉर डिजिटल आलिम, चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो अदर सेक्ट ऑफ मुस्लिम कैटेगरी हो। तो कोई भी बंदा कुछ भी क्वेश्चन अगर वो डालता है डिजिटल आलिम में, तो उसके सेट के हिसाब से उसको बुक्स या उसको आंसर्स मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ रेफरेंसेस। So this is something which we came up, digital learning, right? Similarly, which we also came up with the multiple things. We'll talk on that inshallah बाद में। लेकिन यह है कि AI अगर आप कुछ चीज़ बना रहे हो, तो it should be first of all word, कि आपके जितने भी यूजर्स है वो तारीफ करें, वो उनके काम में आ सके। Definitely you should go for, I would suggest you should go for the tools which can make better life. या एग्जैक्टली। और ये जो अभी आपने यू टॉल्ड अबाउट योर ओन वर्क, वही पैटर्न एक्चुअली फॉलो हो रहा है साइकोलॉजी में, और फॉलो होना भी चाहिए। और मेरा जो वर्क है, इट्स बिट इन अ कॉम्प्लिकेटेड लेवल, जो मैं यूनिवर्सिटी में कर रही हूँ। एक्चुअली आई एम रीडिंग पीपल्स, मैं तो नहीं, एआई इज रीडिंग पीपल्स फेस, और उनके फेस के जरिए, उनके एक्सप्रेशंस के जरिए ये बताए कि इनको अल्जाइमर है या नहीं है। दैट्स अनदर Hmm. स्टोरी। लेकिन We'll definitely talk about the your research and your thesis as well, and the book which you mentioned, the psychologist, the millionaire psychologist. In India, it is available at Amazon.in. You might get it for 351 rupees in India. So the book is available, and in fact, I have ordered that book, but the delivery was on Monday because of Saturday Sunday. So that's why I'm unable to present that book in front of you.
Okay, great, great. And also your upcoming book, if you talk about, it is the title is Good Wife. So how would you define good wife? What is that? The title of the book is not Good Wife. The story, the theme of the book is a Good Wife. The title Okay. is as that I'm not sure about. Actually, जब से मैंने ये पेज बनाया है, a lot of people are commenting me खवातीन, मेरी शादी है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, मैं क्या करूं, आप मुझे एक टिप दें, मैं ससुराल में सरवाइव कर सकूं. इट Mm-hmm. माइट सीम फनी, लेकिन मुझे तरस आता है कि इतना भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में अंग्रेजों वाली साइकोलॉजी बहुत ज्यादा है, लेकिन वी डोंट हैव दैट मच इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान के सोसाइटी में वो जो ससुराल वाला एक सिस्टम है, उसमें एक वो लड़की जो जा रही है, मजबूरन रह रही है ससुराल के साथ, वो उसको कैसे सरवाइव करे. मैं क्या करूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए कैसे एक अच्छी बीवी, आप मुझे कोई टिप्स दें. तो आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं सबको जो है टिप्स देने लगूँ कि आप ये करो. देयर हैज टू बी ए कंप्लीट मैनुअल, शायद कह सकूँ मैं, कि उस मैनुअल में Mm-hmm. जिस पार्ट को चाहते, फॉर एग्जाम्पल शुरू मैंने बुक इस तरह किया है कि जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो किस टाइप की होती हैं. बाज लड़कियां दी Mm-hmm. थ्योरी से भी मदद लिया है कि देर आर सम गर्ल्स दैट दे रियली वांट टू गेट मैरिड, देर आर सम गर्ल्स दैट आर सो पेसिमिस्ट रिगार्डिंग मैरिज, कि हम तो शादी नहीं करनी, मर्द ऐसे होते हैं. आई टॉक्ड अबाउट दैट. देन आई wrote a questionnaire again from other theories, जिसको उधर ही बुक में यू हैव टू सॉल्व एंड यू हैव टू सी कि आप इनमें से किस Oh, कैटेगरी. okay, understood. Mm-hmm. या सो फिर बाद में शादी वाली लाइफ, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन ससुराल वाली लाइफ. इट्स द फाइनल चैप्टर, द फाइनल पार्ट, एंड देन Okay. Mm-hmm. तो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ मैनुअल उन लड़कियों, उन खवातीन के जवाब के लिए जो मुझे बहुत ज्यादा कंसल्ट करते हैं कि गाइड अस कि हम क्या करें. And when this will be coming, any date or something? I think it depends on my son. He's the boss. Oh. He's actually so Mm-hmm. very, very tough days. I think because of him, my work speed is slower nowadays. लेकिन मेरे जहन में ये था कि एक हफ्ते में हो जाएगा. But now I think 1 month maybe. So, Because it's okay. also मजीद editing, and I sent to some of my friends कि आप भी इसको पढ़ो और देखो कि मैं क्या कर सकती हूँ. So it might take some So time. when, for example, if you're writing a book, so you need clarity, so you discuss with your husband or you discuss with some in your circle, like how does it work? It depends. Um, the book that I'm writing now, right now I'm not asking anyone because I just want to write my own ideas. जब लोग Mm-hmm. मशवरा देते हैं, you get out of track. Correct. After writing everything, because my sisters are also educated and some of my friends, all of them are educated, but to some of them I give my book. उन लोगों को देती हूँ जो उस फील्ड से थोड़ा रिलेटेड हैं और जो नहीं भी है. I tell them as an outsider, for example, ये जो साइकोलॉजी वाली बुक है, it's majorly Mm-hmm. for psychology students. लेकिन मैंने अपने किसी फ्रेंड को हु हैड बैचलर इन केमिस्ट्री, मैंने कहा कि रीड दिस एंड जज इट एज ए पर्सन हु इज ए केमिस्ट्री एक्सपर्ट. तो इस तरह मैं अपने सर्कल में करती हूँ. एक्चुअली राइट थिंग वाज दैट शो ए प्रोफेसर या अपने किसी कोलीग को दिखाती. बट आई Okay. book when my son was I think 4 months, and still I had that postpartum depression and I was a very bad phase. तो मैंने उतना इन्वेस्ट नहीं किया कि लोगों को दिखाऊं. मे बी Mm-hmm. उसको एडिट करके दोबारा रीपब्लिश करूं. बट राइट नाउ जितना मुझे फीडबैक मिला वो ये था कि या इट इज परफेक्ट, उन्होंने कोई गलती नजर नहीं आई. Also, Yasmin, how do you personally draw the line between feminism and humanism? Today I was in park and I don't know, all of a sudden एक शख्स आके बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगा in the comment section that आपको ये बोलना चाहिए था आपको. I was like, I was already stressed because of my son, और वो अपने पेज पे उसने मेरी स्टोरी को मेंशन किया, इस औरत को ये करना चाहिए था. I was Mm-hmm. shocked. Cool down bro. फेमिनिज्म एक्चुअली उस वीडियो में भी मैंने ये कहा था. वो उस शख्स का वो इसलिए लड़ रहा था कि आपने ये बोलना था कि ये जो फेमिनिज्म है ये यहूदियों का काम है. ये भाई मैं तो लड़ नहीं रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि बहुत से सेंस में फेमिनिज्म ठीक भी इस्तेमाल होता है. मैंने कुछ वीडियोस देखी, आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पे, जैसे कोई गांव है, उस एक औरत को बहुत ज्यादा मार पड़ी है और वो भाग रही है, Hmm. और यहाँ पे फेमिनिस्ट आके स्टैंड ले रहे हैं, तो वहां पे उस बेचारे के लिए अच्छा कर रहे हैं. ओके, मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी. लेकिन बहुत सारे फेमिनिस्ट सोशल मीडिया पे, स्पेशली जवान लड़कियां आके मर्दों को बुरा भला कहने लगते हैं. वो मुझसे शादी करके तो दिखाए, वो ये कर, मैं उनको ब्लेम कर रही थी. बेसिकली दिस इज द लाइन कि
के राइट के लिए बोलें, चाहे वो कोई ट्रांसजेंडर है, चाहे वो कोई फीमेल है या मेल है, अगर किसी के साथ दुनिया में ज्यादती हो रही है तो बोले। ये कि करेक्ट। क्योंकि वो फीमेल है तो उसको कुछ ज्यादा नो, एवरीवन हैज हिज ऑन, फीमेल को उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, मेल को उसके जेंडर और उसके हम्म। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। सो देयर हैज टू बी ए ह्यूमन राइट थिंग। मर्दों के साथ भी बहुत ज्यादा होती है, कभी ज्यादती होती है। समटाइम्स दे डोंट गेट दैट रिस्पेक्ट इन होम। एंड इतने मैंने क्लाइंट से स्टोरी सुनी है, मेरा डीएम भरा हुआ है कि भाई शादी हो रही है, लड़की की डिमांड्स बहुत ज्यादा है, मैं कैसे पूरा करूं। तो ये मर्दों के प्रॉब्लम्स है, जो कि अब मेलिज्म, पता नहीं मैस्कुलिनिज्म कुछ है कॉन्सेप्ट या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बिकॉज फेमिनिज्म को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट, मेरा ये कहने का मकसद था बेसिकली, दिस इज द लाइन So दैट यू हैव। how much DMs you get regarding this? आई एम सॉरी। How much DM you get on a daily basis regarding feminism and आई all that? डोंट नंबर, बाज दिन बहुत ज्यादा मिलते हैं, कभी कम मिलते हैं, लेकिन द डीएम्स आई मोस्टली गेट, लोग सजेशन देते हैं, कमेंट्स देते हैं, बट बहुत से लोग आके अपने स्टोरीज और मसाइल शेयर करते हैं। आई हम्म। टेल यार कोई अपॉइंटमेंट बुक करो, बिकॉज आई डोंट बी रूड, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि मैं फुल टाइम बैठ के चैट करूं एक शख्स के साथ और आई लीव एवरीथिंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। देयर हैज टू बी कमिटमेंट, ए टू वे कमिटमेंट, कि मैं उसको वो टाइम दे सकूं। लेकिन अक्सर मैं जवाब देती हूँ इन अ शॉर्ट फॉर्म, और कभी थोड़ा लॉन्ग भी किसी को हेल्प कर लेती हूँ। कोई जवान लड़की होती है जो आई नो उसकी एज कम है, उसके पास सैलरी नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा गाइड कर लेती हूँ इफ शी इज स्टक इन अ वेरी बैड सिचुएशन। Okay, nice. So डेफिनेटली, या तो ऐसा कुछ पैटर्न बनाना चाहिए जहाँ पे किसी ने कोई कमेंट किया या कुछ चीज़ लिखी, एंड ऐसा कोई टूल हो जहाँ पे वो टूल में आपके सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हो, और वो टूल ऑटोमेटिक इवेलुएट करके उसको उसका रिस्पॉन्स जो है दे दे, एंड दैट रिस्पॉन्स विल बी योर रिस्पॉन्स ऑन योर बिहाफ। इट कुड लाइक अगेन एआई। Yeah, yeah, and a great idea. I'll think about. राइट। ओके। एंड डेफिनेटली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया की वजह से घर भी हमें टूटते हुए नजर आते हैं, राइट? कि ये इन्होंने सोशल मीडिया पे ये कर दिया, पता चला कि ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, राइट? किसी और नाम से या जो भी है, तो रिलेशनशिप पे भी हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, इजंट? ओके, अगर चीटिंग की बात करूं तो जिसने चीटिंग करनी है वो सोशल मीडिया की जगह जो है वो दे कैन फाइंड अ लॉट ऑफ अदर वेज। एंड मैं एग्जांपल मेरे जहन में आ रहे हैं कि जो लोग सोशल मीडिया यूज ही नहीं करते और वो इस तरह हम्म। चीटिंग करते हैं that वो पार्क में ढूंढ लेते हैं, वो कहीं पे भी ढूंढ लेते हैं। सो आई कैन नॉट ब्लेम सोशल मीडिया, उधर जरा आसानी से मिल जाता है। लेकिन सोशल मीडिया में तो झूठ भी बहुत है, एक शख्स एक औरत के साथ जो है रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, बाद में समझता है कि वो मर्द है, इस टाइप के केसेस भी होते हैं। लेकिन द फर्स्ट थिंग ये बहुत होता है कि आजकल लोग अपने लाइफ सोशल मीडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और हमें ये लगता है, जब मैं ये बात करती हूँ लोगों के जहन में आता है कि शायद मतलब यह है कि खूबसूरत लड़कियां हैं सोशल मीडिया पे, तो एक आदमी देखेगा और वो सोचेगा मेरी बीवी तो प्यारी नहीं है, और वो जो है चीटिंग करेगा, वो जेलस होगा। हम्म। एक्चुअली इसका ऑपोजिट भी है। हम सोशल मीडिया पे कितने मर्दों को देखते हैं जो अपनी बीवी की केयर कर रहे हैं, जो बच्चे पाल रहे हैं, जो कि अपने बीवी को बहुत महंगा गिफ्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे औरत भी तो जेलस हो रही है। आई मीन इट इज वो दोनों साइड पे जो है डैमेज कर रही होती है। मतलब बहुत से मर्द कहते हैं कि नहीं सोशल मीडिया यूज करना इट्स ओके, मेरी बीवी खामखा जेलस हो रही है, तो उनको मैं ये कहती हूँ कि आपकी बीवी भी किसी और आदमी को देखे, उसकी नेकी और उसके टेक केयर फॉर हिज वाइफ को हम्म। जेलस करते हैं कि आपने मेरे साथ क्यों ऐसे नहीं किया। सो अनफॉर्चुनेटली ये होता है। करेक्ट। सो यास्मीन, इसी क्वेश्चन के बेसिस पे या इसी इसी थियोरी के बेसिस पे वी हैव रीड सम सर्वे एट मुंबई यूनिवर्सिटी, एंड वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमें या रिस्पॉन्सेस हमें देखने को मिले थे। आई गेस देयर वर मल्टीपल 700 प्लस रिस्पॉन्सेस, उसमें उसमें से हमने कुछ रिस्पॉन्सेस आपके लिए सिलेक्ट किए थे। एक सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास ऑन द टॉपिक विच वी आर ऑन। उसमें से ये एक टॉपिक है कि व्हाट इज वन कॉमन पैटर्न यू सी today that quietly destroys relationship, especially because of social media? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अगर मैं बताना चाहूँ तो कंपैरिजन। हम दूसरों के लाइफ के आउटवर्ड को देख के अपने जिंदगी के इनवर्ड सिचुएशन के साथ बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं। हम मान लेते हैं, हम कहते हैं ये सच है। ठीक है, एक हस्बैंड को हम देख रहे हैं, वो अपने बेबी के लिए जो है फीडर बना रहा है और टेक केयर कर रहा है, हम्म। लेकिन ये भी हम देख सकते हैं कि शायद उसकी बीवी इज द पर्सन जो कमा रही है। मिसाल के तौर पे हम नहीं पता उनकी सिचुएशन में क्या चल रहा है, लेकिन शायद मेरे घर में मेरा हस्बैंड ज्यादा कमाता है, या शायद मेरे घर में मेरा हस्बैंड रात के 8 बजे तक
ऑफिस में होता है, उसकी हम्म। जॉब रिक्वायरमेंट है, और मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपैरिजन बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया पे, लेकिन अदर दैन सोशल मीडिया अगर मैं बताना चाहूँ कि आजकल के रिलेशनशिप में सब्र बहुत ज्यादा कम हो गया है, बोथ इन मैन एंड वुमेन। Correct. So, from your experience, what is the main difference between therapy and coaching that people don't understand? थेरेपी बहुत ज्यादा एक क्लिनिकल क्लिनिकल साइकोलॉजी का टर्म। आई डोंट नो Hmm. इफ यू हर्ड अबाउट DSM-5 और नॉट, लेकिन No. DSM-5 इज ए बुक, इज ए होली बुक, जैसे नहीं ऐसे कहना चाहिए, लेकिन जैसे मुसलमानों के लिए कुरान है, फॉर साइकोलॉजिस्ट इट्स DSM-5, उसमें सारे डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, Okay, in that aspect. Okay, understood. हर डिसऑर्डर को क्राइटेरियाज लिखे हैं कि अगर आप में ये है, इनमें से पांच है, चार है, तो आपको, और वो एक बुक है जिसके अकॉर्डिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डायग्नोस करता है। और ये डायग्नोसिस से बचने के लिए जो है मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी को एक्चुअली छोड़ दिया, बिकॉज इट इज वेरी, पेशेंट से हट के हम बस डायग्नोसिस में लग जाते हैं, इट्स टू टफ। Understood. Okay. थेरेपी ज्यादा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है, जैसे कि किसी को OCD है, कोई बार बार हाथ धो रहा है, उसके लिए हम क्या करें? कपल थेरेपी है, मैं उसके पैटर्न ढूंढूं, इसके पैटर्न ढूंढूं, पर्सनैलिटी ढूंढूं, इसके बचपन में क्या होता है उसको। कोचिंग में ज्यादातर थोड़ा ब्रॉडली हम बीमारियों से हटके, डायग्नोसिस से हटके उस इशू के टॉप को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ ऐसे कर रहे हैं, ये लड़ रहा है वो लड़ रही है, हम दोनों की बात सुनते हैं, तो आपको ये कहना चाहिए इधर आपकी गलती थी, इट्स काइंड ऑफ गाइडेंस, Hmm. प्रोफेशनल गाइड। लेकिन थेरेपी इज वेरी डीप। Okay. So nowadays, like for example, if I talk about Indian and Pakistanis, तो उनका ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये चाहते नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, राइट? दे वांट कि अगर फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी का अगर झगड़ा है तो वो आपस में ही बंद कमरों में इसको सॉल्व कर ले। बट यही चीज अगर यूरोप में हो रहा है या मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है तो दे वांट कि विल गो टू सम थर्ड पार्टी एंड वहां से विल गेट सम सोल्यूशन एंड इसको हम जो है ये जो भी डिस्प्यूट है हम इसको सॉल्व करेंगे। सो उनकी जो मेंटेलिटी है जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैंने किसी और तरह देखा है इस सिचुएशन को। आई विश कि वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना करें। मैंने जो हम्म। देखा है पाकिस्तान, कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है, तो मामू को बुला लिया, खाला को बुला लिया, सबको बुला लिया कि आके आप ना इन्वॉल्व करें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना आपको लगे कि सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम्म। जाए प्रोफेशनल के पास। मैं कहती हूँ कि आते हैं जो थोड़े समझदार हैं, मेरे पास आते थे और वो छुपाते थे इसको अपने फैमिली से, और ये वो कपल है जो कि एक्चुअली कामयाब होते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल जो कि आपको नहीं जानता, मेरे पास कभी रिश्तेदार या जिनको मैं जानती थी, मेरे दोस्त आगे कहते मेरे हस्बैंड साथ ये मसला है, मैं कहती मैं नहीं सॉल्व कर सकती, आई नो यू। जिनको आप नहीं जानते आप उनके पास जाके सॉल्व करें, लेकिन अगर नहीं जाना तो खामखा रिश्तेदारों को, सब वो लड़ाई खत्म हो जाएगी, वो हम्म। एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन सबको पता होगा कि आपके घर में क्या चल रहा है। दे नो एवरी डिटेल, दैट्स सो एम्बैरेसिंग, यू नो। यूरोप में ऐसे ही होता है कि वो प्रोफेशनल के पास जाते हैं, और थर्ड पर्सन रिश्तेदारों को तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करते, दोस्तों को भी मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वॉल्व नहीं करते, एंड दिस इज द राइट थिंग। या बिकॉज एक एरा था लाइक 90s का 80s का जहाँ पे पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है घर में। बट इन दिस मॉडर्न एरा, डू यू थिंक मॉडर्न रिलेशनशिप आर बिकमिंग मोर फ्रेजाइल? आई थिंक दे आर मोर विजिबल दैट दे आर मोर फ्रेजाइल। क्या 100 साल पहले मुझे पता था कि मेरे नेबर में, चलो नेबर के घर से आवाज आ सकती है, लेकिन क्या मुझे पता था कि मेरे कजन का अपने बीवी के साथ कैसा रिश्ता है? जो वो बताते थे हम मान जाते थे, ठीक है। इसी तरह मुझे कहाँ से पता था कि मेरे कंट्री में कितने कपल हैं जो कि सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, ठीक है। मुझे हम्म। लगता था एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, लेकिन अभी वी नो अ लॉट, हमें बहुत कुछ पता है सोशल मीडिया की वजह से। हमें डिवोर्स रेट का पता है, डिवोर्स लेना अभी इज वेरी मच इजियर एज कम्पेयर टू पास्ट। करेक्ट। तो हमें लगता है कि शायद बहुत फ्रेजाइल हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत फ्रेजाइल हुआ भी है, और उसका मेजर रीजन कंपैरिजन है। हम देखते हैं कि बाकियों को क्या हुकूक मिल रहा है, मुझे तो नहीं मिल रहे, बाकी किस तरह जी रहे, हम तो ऐसे नहीं जी रहे। और लाइफ इतनी बिजी है कि सब्र भी जो है हमारे अंदर कम हो गया है, तो काफी तक फ्रेजाइल हुआ भी है, लेकिन ये याद रखिए कि हमें नजर भी ज्यादा आ रहा है, पहले भी मसाइल थे। करेक्ट।
बिकॉज डेफिनेटली बिकॉज आज के टाइम पे हर एक बंदे पे प्रेशर होता है, राइट? For example, I understand that your son is gonna be 10 months old in coming few days, mashallah. And so, as a psychologist and as a mom, how do you handle those challenges of building your career where being there for your baby 24/7? Yes, actually, I'm with my baby 24/7. Unless I have a meeting at university. Alhamdulillah, most of the stuff are done from home, my research work. Like online contact है with the university. हालांकि इधर करीब ही है. Okay. Hmm. इट इज वेरी चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग। और मैं कभी सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि कुछ लोग हैं पाकिस्तान में आई डोंट नो, यू नो अबाउट दैट, आई डोंट नो अबाउट इंडिया, लेकिन पाकिस्तान में एक एवरेज फैमिली भी एवरेज से थोड़ा हाई हाउसमेड अफोर्ड कर सकती है, ठीक है। Hmm. जब मैं रहती थी तो ऐसा होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। इफ यू वांना टेक ए हाउसमेड यू हैव टू गिव मोर देन हाफ ऑफ योर सैलरी टू दैट पर्सन, इट्स टू Correct. एक्सपेंसिव। Hmm. बहुत यहाँ पे लोग नहीं रखते, नॉर्म नहीं है। मगर ये कि कोई बहुत ही अमीर है, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड दे एक्चुअली नीड इट, नीड मुझे भी है, लेकिन इट्स अ वेरी हाई प्रोसेस, इट्स बहुत प्रोटोकॉल है उसका। Hmm. तो बहुत सी माएँ सोशल मीडिया पे आए कहते हैं कि मैं माँ भी हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ, एंड मुझे पता है कि वो अपने सास के साथ रहती है और एवरी डे और एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक उनकी अम्मी भी आ रही है उनके पास, या बहन कभी आ रही है, और होम मेड भी है। एंड स्टिल आई नो मदरहुड इज अ टफ थिंग, नो डाउट। लेकिन जो लोग कंप्लीटली अलोन बच्चे को और घर को हर चीज अलग से संभाल रहे हैं, तो उनका मदरहुड लेवल एक अलग ही चीज है। और वो फिर नसीहत भी नहीं सुनते कि मतलब रिश्तेदार Correct. कहाँ से कह रहे हैं कि नहीं हम भी ऐसे करते थे, हालांकि वो दे वर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। तो फॉर मी रेजिंग ए बेबी इज वेरी टफ, इट इज वेरी टफ, आई कैनॉट से हाउ मच टफ। और मेरा कैरियर भी बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि अभी मेरा रिसर्च का पीक है, आई एम वर्किंग इन मैनी ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स जो कि बेजाते खुद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। Yeah. एंड अगेन सोशल मीडिया को मैं इतना तो टाइम नहीं दे रही, लेकिन उसको भी मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ, लेकिन क्वालिटी और द जिस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हूँ एक्चुअली मेरा बेटा है, क्योंकि आई नो दिस टाइम ये दोबारा कभी नहीं आएगा, मुझे रिग्रेट Correct. होगा Correct. मैंने इसको अच्छा टाइम नहीं दिया। I truly understand about this. And when you mention about your research, so your your PhD focuses on dementia and Alzheimer, right? So in simple language, how do you explain to normal people what dementia actually is and why it matters to all of us? ये कि why matters I'll explain later, but ये कि क्या है, in very simple words, your brain starts giving error, and you know Okay. the brain is the most important thing। और अगर मैं थोड़ा उसके मेडिकल डेफिनेशन को सिंपल अल्फाज में बताना चाहूँ, इसको हम कहते हैं न्यूरो डिजेनरेशन ऑफ ब्रेन। Hmm. न्यूरो मतलब ब्रेन सेल्स, डिजेनरेशन मतलब ग्रेजुअली मरने लगता है, ब्रेन के सेल्स ग्रेजुअली मरने लगते हैं। एंड देन इमेजिन व्हेन द ब्रेन सेल्स स्टार्ट टू डाई, देन Hmm. व्हाट हैपन, व्हाई इट मैटर्स। जब आप डेली फंक्शन नहीं कर पा रहे, जब आप ग्रेजुअली अपने हर चीज के लिए दूसरों से मदद ले रहे हैं, यहाँ तक कि कोई आपको अकेला छोड़ ही नहीं सकता, तो दैट्स लिटिल बिट स्केरी। Oh. So what are the most common misconception people are having about aging and mental health? लोग एजिंग के बारे में, एजिंग को इस तरह डिफाइन करते हैं एज इफ एवरीथिंग इज फिनिशिंग, डेड एंड। ओके, Okay. अब मेरा बेटा भी एजिंग कर रहा है, ही इज ग्रोइंग। ओके, Hmm. 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 हम तब एजिंग से डरते हैं व्हेन वी डोंट हैव अ पर्पस फॉर आवर लाइफ, जब हमने अपने 70-80 के लिए कोई गोल सेट नहीं किया होता, देन बिकम समथिंग स्केरी, अब तो हम मरने लगे, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन व्हेन यू हैव अ प्लान फॉर दैट, दैट डजंट बिकम स्केरी। And if you take care of your everything, mental health, physical health, in your 20s, in your 30s, तो उसका अंजाम भी आप 60-70 में आप उसका रिजल्ट देखेंगे, that actually you do not become an expired person, or when you age, you get more wise, you care less about people के क्या सोचते हैं आपके बारे में। It has a lot of Hmm. benefits. It's not only about, you know, a person expiring and dying. करेक्ट बट इन इंडिया यास्मीन इट इज समथिंग कि जो बीमारियां होती है वो एक सम सर्टेन एज के बाद होती है, राइट? 60 70 जो डिजीज है वो भी एट अ सम सर्टेन एज के बाद होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अल्जाइमर।
Yes, yes. Mostly age at onset is 60, 65. It starts showing symptoms. What kind of symptoms is it? देखिए, जब बहुत विजिबल सिम्टम्स हो शुरू में, हम सोचते हैं कि किसी को अगर अल्जाइमर है तो उसको बचपन की वो कहानी जो है वो भूलता होगा वो शख्स Okay. कि वो कौन है, ये कौन है। लेकिन जब शुरू होता है, टू योर सरप्राइज, हम अभी की बातें भूलने लगते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बता रही हूँ कि आपने 2 बजे इधर आना है, ठीक है, एंड आई गो, हम्म। आई कम आफ्टर 1 आवर, आप कहें कि आपने मुझे ऐसे नहीं बोला था। नॉट वन टाइम, मल्टीपल टाइम्स, एवरी डे, हम्म। 3 मंथ, और ये बढ़ता जाए। ये इसका इनिशियल सिम्टम, हम अभी की बातें भूलने लगते हैं। मैं आपके लिए एक गिलास जो है पानी आके रख दूं कि आपने अभी इसको पीना है, और मैं जाऊं, मैं वापस आऊं, आप आगे से कहें कि ये कौन लाया है, किसका है ये, यू नो, हम्म। फॉरगेटिंग समथिंग, और फिर बाद में आपको याद भी ना आए कि अच्छा हाँ तुमने ऐसे कहा था। नहीं, याद नहीं आएगा। ये एक बहुत विजिबल साइन है जो शुरू में आने लगता है। So, okay. So, through your research in Spain, have you found certain lifestyle habit, like it could be diet, sleep, or mental exercise that can actually help us to protect our brain from this neurological disorder as we age? यस, फर्स्ट थिंग इज एक्सरसाइज। यहाँ पे Mm-hmm. लोग दिन रात भाग रहे होते हैं, जिम में होते हैं। और आई रिमेम्बर व्हेन माय हस्बैंड केम हियर, मैं ईरान में थी, तो ही टेक्स्टेड मी, मैंने कहा अच्छा यूरोप कैसे है मुझे बताओ। ही सेड मुझे बहुत शर्म आ रही है इधर, एवरीवन इज सो फिट और हर कोई भाग रहा है एंड दे आर डूइंग एक्सरसाइज। हालांकि माय हस्बैंड यूज्ड टू ऑन एंड ऑफ गो जिम एंड ही टुक नेशनल अवार्ड बिकॉज ऑफ किक बॉक्सिंग। उसको भी शर्म आ रही थी कि मैं तो, मेरी तो शेप बहुत बुरी है, आई हैव टू गो टू जिम। एक कल मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। देन आई यूज टू थिंक कि मेरी क्या हालत होगी। हालांकि मैं भी ऑन एंड ऑफ एक्सरसाइज करती थी, वॉक करती थी, लेकिन इट वाज नथिंग। सो दिस इज द थिंग दैट दे वर्क अ लॉट ऑन। और मैं देखती हूँ जिम में कभी 65 70 साल की औरत आई हुई होती है, एंड शी इज लिफ्टिंग एज मच एज मी, और उसको ना कहीं Mm-hmm. तकलीफ होती है, उसके पास उतना ही पावर है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत साल पहले ही शुरू किया था। और डाइट में भी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे सोसाइटी में, ईरान पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खाते हैं और अच्छा खासा चावल सब कुछ। यहाँ पे नहीं, लिटिल बिट, बट इट हैज हाई प्रोटीन, इट हैज हाई न्यूट्रिशन, और इस तरह जो है अपना ख्याल रखते हैं। Because even in India, खाना खाने के बाद भी इनको चाय लगती है, तो it is like And that. चाय के साथ भी it has to be some stuff, you know. Yeah, because uh, I belong from a joint family system. Okay, so there are some 30-35 people. Okay, in one house. So it's a joint family system. And so होता यूं है कि सुबह शाम कुछ ना कुछ लोग खा ही रहे होते हैं, राइट? आपका किचन हाउसफुल होता है, यू कैन फाइंड समथिंग टू ईट 24/7। सो हमें ये ख्याल नहीं आता दूर दूर तक कि हमें अपना सेहत का ख्याल रखना है, राइट? या बिकॉज वी वांट टू लिव आवर लाइफ एट एट फुल लेवल, राइट? अब जो कोई बंदा जो डाइट रख रहा है या जो जिम जा रहा है और उसके सामने अगर कोई एक टेम्पटिंग डिश रखी हुई है, तो फिर वो कैसे बर्दाश्त करेगा? मैं हमने इनसे सीखा है, मैंने और मेरे हस्बैंड, मी एंड माय हस्बैंड बोथ ऑफ वर सो मच फूडी। और हम जो है हमें बस, क्योंकि यू नो इरानियन फूड एंड द स्वीट स्टफ, इट्स सो डिलिशियस। तो यहाँ पे आके वी वर लाइक ये खरीदे वो खरीदे, तो आखिर में हम कहा कि वी हैव टू लिव लाइक दैम। हमने फैसला कर लिया। और खाने में हमने चिकन बॉईल करके, चिकन ब्रेस्ट हमने बॉईल करके खाया, एंड इट वाज नॉट टेस्टी। तो हमने हम्म। सोचा आप इसको मॉडिफाई करते हैं। उसमें हमने थोड़े मसाले डाल दिए, तो फिर उसमें हमने थोड़े पिकल्स डाल दिए। और इसी तरह हम छोटे छोटे चीजें जो कि हाई कैलोरी नहीं है, हम डालते गए। फिर हमने सोचा कि नहीं, हम इसको ओवन में डालेंगे, ज्यादा मजे का होगा। और उसी चिकन को हमने इतना मॉडिफाई किया कि अभी मैंने खुद उसके लिए सॉस बनाना शुरू किया है। आई मीन वी आर फाइंडिंग, यूट्यूब अवेलेबल है कि हम किस तरह ऐसे केक बनाएं जो कि डाइट फ्रेंडली हो, हम कैसे इस तरह का चिकन बनाएं जो कि बर्गर जैसे उसका टेस्ट हो। हम्म। ये आजकल के एरा में यूट्यूब में अवेलेबल है। इसलिए जब हम ये खा लेते हैं, पेट भरा होता है। अभी मैंने एक डाइट फ्रेंडली मिठाई खाई है, तो बाहर सड़क पे अगर मैं कुछ देखूं तो मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं वो खरीदूं। अगर हम भूख से खुद को मारेंगे तो ऑफ कोर्स वी विल जस्ट अटैक एंड गो एंड बाय। यूट्यूब पे या हम रील्स देख रहे हैं और रील्स पे किसी खवातीन ने कह दिया कि
आप ऐसा अंडा बनाएं, आप उसमें ये चीजें ऐड अप करें। फॉर एग्जांपल ये मैगी है, यू डू समथिंग विद दिस मैगी, इट लुक्स लाइक वेरी चीजी एंड वेरी गुड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे फ्रेंड्स जो है उसको बनाने में लग गए, राइट, एंड व्हेन दे आर टेस्टिंग इट, ओ इट्स गुड, बट पता है कि इसमें डबल चीज है, इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ेगा, एवरीथिंग इट कुड बी इन्वर्टेंडो, बट स्टिल दे वांट टू हैव दैट पर्टिकुलर फूड। एक्चुअली हम उस एरा में है जो कि एक एआई का एग्जांपल ले लें, चैट जीपीटी। अब उसको बोलें कि मैंने ये चीज खानी है लेकिन इट इज हाई इन कैलोरी, मैं ऐसे क्या बनाऊं जो टेस्ट वैसे हो लेकिन डाइट फ्रेंडली हो, आप यू विल बी सरप्राइज, वो आपको आंसर दे देगा। एंड आजकल के दौर में मुझे नहीं लगता एनीवन हैज टू हैव एन एक्सक्यूज कि नहीं ये उतना मजे का नहीं बना, हम उससे भी ज्यादा मजे की चीज बना सकते, बिकॉज इन स्पेन मोस्ट ऑफ दिस स्टफ आर शुगर फ्री। हम्म। मैं सेवन अप पीती हूँ, कोका कोला, इट्स एन अल्टरनेटिव ऑफ दैट, स्पेन मेड इट, जिसमें शुगर नहीं है, इट्स जीरो शुगर, एंड वी एंजॉय इट, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है। तो अगर चाहो तो मिल जाएगा, बट इफ यू वांट फाइंड एक्सक्यूज, नहीं टाइम नहीं है, तो yeah, you'll just get fat and you will damage your brain. अगर किसी इंडिविजुअल बंदे को अगर पीएचडी करना है, लेट्स अज्यूम अगर मुझे पीएचडी करना है, सो व्हाट वुड बी दी पैरामीटर्स कि ये बंदा जो है ये पीएचडी कर सकता है, ये अपना थीसिस भी कर सकता है, एंड ही कैन सर्व द नेशन और सोसाइटी इन अ बेटर वे। The first one, for anything in life, you should love that thing. PhD is very tough, और उसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा लो है, मतलब जो ही आप पीएचडी के लिए जाए, इस तरह नहीं सब कहें ओ माय गॉड शी केम फॉर पीएचडी और ही केम और हम्म। बस ये लो सैलरी लो। नो, you work a lot and at the beginning you get very low income, but you put a lot of effort. If you already have a job, if you have an income, लेकिन आपका एक गोल है जिसके लिए आपको पीएचडी करना चाहिए, देन गो फॉर इट, ओके। लेकिन अगर ये कि पीएचडी करूँ कि मैं कमाऊंगा, तो दिस विल नॉट वर्क। और ये कि यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया पूरी दुनिया में, इवन इन यूरोप, हर कंट्री का कंट्री से क्राइटेरिया मुख्तलिफ है, इवन इन स्पेन हर यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ है। लेकिन हम्म। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ओवरऑल अगर फंडेड प्रोजेक्ट भी हो जैसे नेदरलैंड्स में होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोफेसर शुड लाइक यू, एक्चुअली दे शुड लव यू। उनको चाहिए कि वो ये कहें कि तुम पहले किधर थे, यू नो, दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज दे गेट हंड्रेड्स ऑफ ईमेल, देन व्हाई यू, ओके। हम्म। In order to love you, they need a research in a good journal. आप इस तरह जब ईमेल शुरू करते हैं कि हेलो मैं फलानी हूँ, मैंने एक ये मेरा टाइटल है मेरे रिसर्च का और मैंने इस जर्नल में पब्लिश किया है, आइए इसके हम्म। बारे में बात करें, देन यू आर इंटरेस्टिंग। अगर आप बोले कि मुझे बहुत शौक है, मैं बहुत एंथुजियास्ट हूँ, दे आर लाइक वी हैव हंड्रेड ऑफ दैट, दे डोंट से इट बट यू नो, ओके जस्ट गुड बाय। तो दे हैव टू एक्चुअली सी कि आपने अपने लाइफ का एक हिस्सा दिया है इस रिसर्च को और आप यू आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर दैट पर्सन। Correct. So also we have some students question. Let's see. Uh, so Raj Sharma, he want to ask you that you specialize in dementia and Alzheimer's. What are early warning signs people usually ignore? हम अभी के इवेंट्स को भूलने लगते हैं, Correct. और इस तरह नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर सकें, यू फील समथिंग इज रॉन्ग, आपका ब्रेन आपको लगता है एक जगह पे आपका साथ नहीं दे रहा, इट इज Hmm. नथिंग लाइक साइलेंट कैंसर कि आपको समझ में नहीं आ रहा। हाउएवर, अल्जाइमर अपने सिम्टम्स को दिखाने से बहुत साल पहले आ जाता है आपके ब्रेन में, बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि शायद लेटर यू आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिवेंशन। अगर इफ यू डोंट हैव अ हेल्थी लाइफस्टाइल, अगर कोई बंदा अल्कोहल पी रहा है और बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहा है और कुछ भी नहीं, आप कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहा, और उसके जेनेटिक्स में भी अल्जाइमर है, तो Hmm. कहीं ना कहीं वेट फॉर इट, यू नो। आई So आई नॉट so do you सेइंग, think हमारा जो बाहर का जो खाना पीना है, that will give you the impact on your brain, like healthy brain? ऑफ कोर्स इट हैज एन इम्पैक्ट। देखिए इसका ऑपोजिट भी देखें कि अगर हम कुछ हेल्थी खा रहे हैं, बहुत से हेल्थी फ्रेंडली फूड्स हैं, जैसे बेरीज हैं, जैसे कि ओमेगा 3 रिच फ्रूट्स, जैसा मछली समझ ले, सैल्मन, Mm-hmm. और इस टाइप के फ्रूट्स में जो इंटरनेट भरा हुआ है, जितना ये अच्छे हैं, तो इनका जो ऑपोजिट है वो भी तो बुरा है। अगर हम एक फूड खा रहे हैं जिसमें जो घी में तला हुआ है, जिसमें Hmm. बहुत
ज्यादा कैलोरी है और बहुत ज्यादा फैट्स हैं, और अच्छे वाले फैट्स नहीं है, बिकॉज वी हैव गुड फैट्स टू, लाइक एवोकाडो में अच्छे फैट्स होते हैं। अब आप फ्राइज ले रहे हैं, और वो भी शॉप से, जो कि उसी तेल में उन्होंने 10 बार शायद एक हफ्ते से वो तल रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन के क्या जा रहा है आपके ब्रेन में, हम्म। आपके स्टोमक में, करेक्ट, बट एज वी सेड दैट टेस्ट मैटर फर्स्ट, उनकी प्रायोरिटी वैसी होती है, बट स्टिल उनको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, डेफिनेटली। एंड ऑल्सो वी गॉट वन क्वेश्चन दैट if someone wants to keep their brain sharp for the next 20-30 years, what three habits they should start today? नंबर वन, एक्सरसाइज, नॉन नेगोशिएबल। और एक्सरसाइज में धोखा नहीं देना खुद को कि नहीं मैं घर में थोड़ा नहीं, प्रॉपरली इस तरह के लिटरली थक जाओ एंड पे, एंड यू फील दैट यू आर डूइंग समथिंग, मसल्स आपके खिंच जाए। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस, नाउ आई डोंट वांट टू हैव अ जिम क्लास हियर, लेकिन यू हैव टू एक्चुअली डू, धोखा नहीं देना। भागना है या वर्कआउट करना है, जिम में जाना है। अब बहुत से खवातीन शायद पाकिस्तान में बोले कि ये पागल हो गई, हम एक्सरसाइज का, हमारे हस्बैंड नहीं, हमारा कल्चर नहीं है, तो मैं कहूंगी घर में करें। वो कहेंगे हम ससुराल के सामने अब ये काम शुरू कर दें। यस, दरवाजा बंद कर दें। इफ यू हैव हाफ एन आवर, 1 आवर जो कि आपके लिए, जिसमें आप फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, तो यूट्यूब में भरा हुआ है। आप जस्ट यूट्यूब में सर्च करें कि मैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब विदाउट एनी ये जो जिम के स्टफ होते हैं, Hmm. ये बगैर मैं कैसे वर्कआउट करूं, यूट्यूब भरा पड़ा है। दे हैव अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर यू, a lot of exercises for you. तो you don't have any, आजकल के दौर में you don't have any excuse, even with the help of AI and ChatGPT आप बता सकते हैं कि ये मेरी हाइट है, ये मेरी एज है, ये मेरा लाइफ स्टाइल है, तो मैं किस टाइप के वर्कआउट्स करूं, ये मेरी सैलरी है, मैं क्या खाऊं जो कि सस्ता भी हो, मेरे सैलरी के अकॉर्डिंग भी हो और अच्छा भी हो। ChatGPT could answer you. I needed to say three things. The second thing is keep your brain busy किसी ना किसी चीज में। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो बार बार वो ना लगाएं, क्या कहते हैं, आई एम सेइंग ChatGPT, जिससे रास्ता मिलता है, Navigation, नेविगेट, GPS, yeah. जीपीएस, जीपीएस ना लगाए, अपने ब्रेन को इस्तेमाल करने की कोशिश करें, बुक्स पढ़ने की कोशिश करें, और बहुत सारी ब्रेन इंगेजिंग एक्टिविटीज है इंटरनेट में अवेलेबल है, उनको करने की कोशिश करें। इफ यू डोंट डू, आपका ब्रेन स्टैटिक हो जाएगा, और वो जो एक लाइटनिंग होती है न्यूरॉन्स की, न्यूरो की, तो वो ब्रेन में नहीं होगा, विद द passage of time the cells start dying and you are helping actually your brain to go towards Alzheimer. And the third thing is that you have to socialize a lot. आपको चाहिए कि अगर रिश्तेदारों के साथ नहीं बनती तो एटलीस्ट कोई सोशल क्लब हो, यूनिवर्सिटी में हो, जॉब में हो, दोस्तों के साथ वो आना जाना बहुत ज्यादा रखे। अकेले घर में बैठ बैठ के दिस डैमेज द ब्रेन। Okay, I think if I'm not wrong, it could be overthinking could also damage the brain, because ये जो हमारे माशरे में जो ये सबसे common है, which is called overthinking, this could be a one of the example. ओवर थिंकिंग के एंड पे स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस रेजेस कोर्टिसोल लेवल। तो yeah, that is it, it's not a cause of Alzheimer, but it can Mm-hmm. speed up। Okay, अगर fair आपको enough. 70 को हो रहा है तो वो शायद 55 में, 60 में हो जाए। हाँ, मतलब जल्दी आ जाए in short. So, okay, so Rehan Khan says, you connect mental health with political or social environment. How does the world around us actually affect our mind? अगर स्पेसिफिकली आई टॉक अबाउट कंट्री, Hmm. कंट्री में जंग है, वॉर है, the political situation is not good in a country, तो the first thing that comes in your mind, you lose your hope। अगर जंग है तो मेरा Hmm. फ्यूचर का क्या करेगा? जब फ्यूचर के लिए होप खत्म हो जाए तो डिप्रेशन हो जाता है। तो आप समझे कि एक शख्स, जैसे हम अफगानिस्तान की मिसाल ले लें, जो कि लगातार इतने सालों से वहां पे जंग है, या जैसे सीरिया की एग्जांपल ले लें, तो इस तरह कंट्रीज में जो ऑन गोइंग वॉर है, और या फाइनेंशियल हालात एक मुल्क के बहुत खराब हो, तो डिप्रेशन वहां पे कितना हाई होगा, और कॉग्निटिव डिक्लाइन। लोग अब द लीस्ट थिंग दे वांट ये कि वो एक्सरसाइज कर, अपने डाइट का ख्याल रखें। तो ऑफ कोर्स दैट हैज a positive impact on speeding up Alzheimer or maybe developing dementia. ओके, सो कॉग्निटिव डिक्लाइन सिर्फ किस चीज़ की वजह से भी हो सकता है? बिकॉज हमने ये भी देखा है, हमने तो कोविड का एक एरा भी देखा है जहाँ पे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, राइट, और दे वर हैविंग नथिंग टू डू। तो दो ही चीज़ थी, ओवर थिंकिंग, राइट, एंड या तो ज़्यादा खाना। अब उसके वजह से काफ़ी बीमारियां जो है वर्क फ्रॉम होम में मिली है लोगों को एज अ बोनस।
But COVID has given multiple opportunities for commercials, because if I say, yeah, for example, Yasmin, I will give you 50,000 rupees ka job, that will be work from home in 2019, right? So you would be having, nahin, ye scam hai, no one will give so much bada amount in 2019. But in 2020, I would say thanks to COVID, because COVID has given us the opportunity to work as hybrid. अब जब work from home आ गया, अब जिनके पास कुछ नहीं था करने को, राइट, फॉर एग्जांपल अगर कोई टैक्सी ड्राइवर है या बस ड्राइवर है, राइट, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उनमें दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू, तो वो यहाँ पे डिप्रेशन के का शिकार हो गए, राइट। अब हमने तो कभी इतना डिप्रेशन वर्ड भी नहीं सुना जितना कोविड आया। एवरी टाइम एवरीवेयर वी यूज टू ओनली सी ओनली वन वर्ड विच इज डिप्रेशन। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? you're right. कोविड ने जो फर्स्ट गिफ्ट हमें दिया, इट वाज सोशल आइसोलेशन, एंड मैन इज अ सोशल एनिमल। हम अगर खाना ना खाएं तो वी स्टार्ट सीइंग द सिम्टम्स, हमें लगता है सिर्फ खाना खाना जो है इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप अस अलाइव, लेकिन सोशल रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्यों, जब दुनिया की जो सजा जब देने लगते हैं लोगों को, क्यों उसको जेल में डालते हैं? बिकॉज दे वांट टू आइसोलेट दैट पर्सन। और अगर मजीद बुरी सजा देने हो तो एक हम्म। बिल्कुल रूम में या जेल सेल में रख देते हैं, बिकॉज आइसोलेशन इज अ वेरी ग्रेट पनिशमेंट। तो कोविड तो अभी नहीं है कि मैं उसके लिए कोई मशवरा दूं कि अभी क्या करना चाहिए, लेकिन फॉर दोज पीपल जो कि थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, या उनका जॉब ऐसे है, जैसे कि मैं कह सकती हूँ राइटर तो नहीं कह सकती, बस जॉब ऐसे है कि यू डू नॉट नीड टू इंटरेक्ट अलॉट विद पीपल, तो इनको मैं कहूंगी कि कुछ सेफ लोग जिनके साथ आप यू हैव समथिंग इन कॉमन, मे बी यू लव बुक्स एंड दे लव बुक, और मे बी यू लाइक फुटबॉल एंड दे लव टॉकिंग अबाउट फुटबॉल, या जैसे इंडिया में क्रिकेट है, तो हम्म। इनके साथ आप कोई गैदरिंग, कोई आना जाना जरूर रखें। अगर आप बिल्कुल सबको छोड़ दें कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, है दुनिया में जो आपके टेस्ट के मुताबिक लोग हैं। इफ यू आर ए मैन देयर आर मेनी अदर मैन, इफ यू आर ए वुमेन तो औरतें तो बोलती भी बहुत है, यू कैन फाइंड दैट सर्कल, देयर आर बुक क्लब्स, देयर आर लॉट ऑफ बहाने अगर हम साइड पे रखते हैं तो यू कैन फाइंड अ वे टू सोशलाइज विद अदर पीपल। Perfect. And okay, so we got one question which is from Nelson Nedar. He says, do you personally use AI tools in your work or research? Of course, a lot. For development of tool, though, I use it a lot because even while I was using Python, उसको सीखने के लिए भी मैं AI को बहुत इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि Python मैंने प्रॉपरली यूनिवर्सिटी में जाके तो नहीं पढ़ा। आई स्टडीड साइकोलॉजी, तो AI विद यूज ऑफ AI बात चीज़ जो मैं नहीं समझती थी, या बात कोड्स जो मैं नहीं समझती थी, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोग्रामर, तो मैं अपने हस्बैंड की जगह इससे पूछती थी, बिकॉज एक तो वो बहुत बिजी था, अदर देन दैट मैं खुद सीखना चाहती थी। आई डिडंट वांट समवन एल्स टू कम एंड गाइड मी कि ये कोड इस तरह से करो, तो आई यूज दैट अ लॉट। और अदर देन दैट मेरा जो रिसर्च वर्क है, इवन बुक लिखने के लिए भी ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालने के लिए एक टाइम ऐसा था जो कि यू नीडेड टू गिव समवन हु हैज डन ए बैचलर इन इंग्लिश, कि वो Mm-hmm. आपको जो है एआई है। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, कभी मैं एक सेंटेंस बोलना चाहती हूँ या लिखना चाहती हूँ इन माय रिसर्च, या एक फॉर्मल लेटर है, तो मुझे वो सेंटेंस ठीक नहीं लगता, आई मोडिफाई, आई रिसर्चर तो बहुत ज्यादा एआई यूज करते हैं, लेकिन फर्क ये है कि यू हैव टू बी द बॉस। ये कि आप पागलों की तरह उसको फॉलो कर रहे हैं, वो आपको एक अजीब लेटर दे रहा है, आप उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और बीच में वो आपको बोल भी रहा है कि क्या ये लेटर ठीक है, हम वैसे ही उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो I understand. गेटिंग स्टूपिड यू नो। ड्यूरिंग कोविड मैं फारिग बैठी थी घर में, और आई थॉट कि आई लॉस्ट एवरीथिंग, मतलब अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे क्या पता दुनिया शायद वर्ल्ड वॉर 3 आने लगे। फिर मैंने सोचा कि व्हाई आई डोंट मेक एन ऐप इन माय होम, सो आई स्टार्टेड यस सर्चिंग इन यूट्यूब, और मैंने जावा पे काम किया, प्रोग्रामिंग, Mm-hmm. विच इज वेरी टफ। आई टेल माय हस्बैंड, वो हंसते लगता है कि व्हाई दैट कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। तो मैंने उसको यूज करके मैं अपने लिए ऐप बना रही थी, और वो इट वाज अ डिजास्टर, लेकिन एटलीस्ट मुझे इंजॉय कर रही थी, आज कितना मजे का है ये। You explore तो new things. Hmm. या आई डिड दैट फॉर अ फ्यू मंथ्स, फिर मैं भूल गई जब सब ठीक हो गया, लेकिन फिर मैं बताऊंगी, जब मैं एडमिशन लेने के लिए मैंने अप्लाई किया तो मैं ढूंढने लगी, मैंने कहा क्राइटेरिया में यू नीड टू लर्न पाइथन एंड ऑल दैट, सो एक तरह से मुझे जरूरत, लाइक आई हैड टू लर्न दैट, नहीं तो मुझे एडमिशन ना देते या कहीं पे ना मिलती। And
Okay, so Hitesh Oja asks, what is the biggest myth about mental health in our society? बिगेस्ट मिथ इन आवर सोसाइटी, अगर मैं पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहूँ, इट्स स्टूपिड मिथ, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है दे कैन रीड द माइंड। Hmm. मुझे यकीन नहीं आता कि अभी भी इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं जो ये सोचते हैं। एंड जो थोड़ा एजुकेटेड लोग हैं दे थिंक कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के रूम में इंटर हों तो हमारे दुनिया के तमाम मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे वो आके साइकोलॉजिस्ट को बोलते हैं मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं नहीं कमा सकता, एंड दे एक्सपेक्ट कि वो साइकोलॉजिस्ट को एक तरीका बताएगी दैट यू हैव टू अर्न। लेकिन वो Hmm. ये नहीं सोचते, आने से पहले वो थोड़ा रिसर्च नहीं करते कि वो आपको इस टाइप के सॉल्यूशंस नहीं देने लगे, दे जस्ट वांना हेल्प यू कि आप उस डिस्ट्रेस से बाहर निकल के अपने दिमाग को इस्तेमाल करके अपने नॉर्मल लाइफ जो है आप जिए, ताकि आपको कोई मजीद मसला ना हो, कोई मजीद डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी ना हो। ना ही कि वो आपको हल दे दे कि कल आपने जाना है उधर, मैंने पैसे रखे हैं और आपने उठाना है और आप अमीर हो जाओ। वो कभी इस तरह के चीजें एक्सपेक्ट करते हैं क्लाइंट्स, एंड दे वांट सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स, यू नो। जहाँ पे सूरत हाल होती है जंग की, राइट, जहाँ पे लोग चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो वो उनका जो एनजाइटी लेवल होता है वो आई गेस 200% हिट कर जाता है। तो वहाँ पे इट इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनका जो मेंटल हेल्थ जो जो स्टेबल होना चाहिए वो इतना अनस्टेबल हो जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं। या मैं खुद कभी सोचती हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में I attended a workshop on psychological first aid, कि हम्म। अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है जिधर वॉर है, कोई मसला है, तो जब आप इंटर होते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट तो ऑब्वियसली आप थेरेपी शुरू नहीं करते लोगों की, लेकिन आप ये देखते हैं कि अभी अगर उधर धमाका हुआ है और ये बंदा जो है सहम शॉक गए। में है, हम्म। आप उसको हेल्प करें, वो थोड़ा शॉक से बाहर निकले, उसको रुलाने की कोशिश करें। इस टाइप के इमरजेंसी एक्टिविटीज साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कि बैठ के उधर उनकी थेरेपी करें कि सब ठीक हो जाएगा, ये इट डजंट वर्क इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन। हम्म। All right, and we have two last questions. How important is the environment around student, teachers, peers, and family in shaping their mental health? A lot. ये मैं बता सकती हूँ who came from ईरान एंड पाकिस्तान टू हियर। इन्वायरमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि टू टू 1.5 3 days बिफोर वॉर आई वॉज इन ईरान। तो इतना सब कुछ डिस्ट्रेसिंग था कि मुझे लगा कि आई एम, मैं भूल गई थी कि मैं रिसर्चर हूँ, मैं भूल गई थी कि मी एंड माई हस्बैंड वी हैव अ जॉब एंड वी हैव अ स्टेबल लाइफ, और मुझे लगता था कि आई जस्ट नीड टू प्रोटेक्ट माई सन। हम घर से नहीं निकलते थे एंड समटाइम्स वर स्टक इन स्ट्रीट एंड people used to attack, तो it was too scary, you lose everything। तो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कभी अपने हस्बैंड कहती थी कि हमारे ड्रीम्स भी हुआ करते थे, हालांकि हम सिर्फ 1 महीना रहे थे वहां पे, लेकिन इतना उसका इफेक्ट हुआ था हम दोनों पे कि लिटरली हमने जितने हम डाइटिंग करते थे वहां पे हमने जाके बिकॉज ऑफ स्ट्रेस हम बार बार अजीबो गरीब हाई कैलोरी फूड ऑर्डर हम्म। करते थे, मजे के भी होते थे। तो उस इन्वायरमेंट ने इतना हमें पीछे कर दिया कि यहाँ पे आके 2-3 महीने अभी तक हम रिकवर होने की कोशिश करें कि हम दोबारा टाइम टेबल पे आ जाए, हम दोबारा डाइट पे आ जाए, हम वर्कआउट करें। इवन माय हस्बैंड फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू जॉइन जिम, क्योंकि इतना उसका इफेक्ट हुआ है उस 1 महीने का। सो इन्वायरमेंट हैज अ वेरी ग्रेट इफेक्ट। And it takes time to come out from this. अलॉट एंड एफर्ट। Correct. We have one last question. Do you think schools, universities should have mandatory mental health education just like physical education? आई थिंक एंड आई प्रपोज दिस आइडिया टू मैनी पीपल, इवन बहुत से लोग जो आर्मी फैमिली से बिलोंग करती थी पाकिस्तान में, मेरे क्लाइंट्स थे, तो मैं उनको कहती थी कि टॉक विद योर हस्बैंड या आप लोग इस तरह के इनिशिएटिव्स लिया Hmm. करें कि डू दैट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ना सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में, क्या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में तो बोली जाती है, कॉलेजेस में सेमिनार्स वगैरह होती हैं, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक स्पेशली अबाउट प्रैक्टिकल थिंग लाइक मैरिटल रिलेशनशिप ना लड़कों को उतना पता है, मुझे खुद नहीं पता था बिफोर कमिंग टू दिस फील्ड। So yeah, they have to be topic specific seminars and they have to be a lot, मतलब ऐसा नहीं कि बस है बराए नाम, they have to work a lot on that. Correct. And it shouldn't be on just private schools. It should be for the government or oriented Or schools as well. Definitely. And Yasmin, you are also founder of Yasori as well.
So can you tell us about Yasuria? What is this and what problem you're trying to solve through it? Actually, I have long-term plans for that. Basically, my goal was developing different AI tools for different purposes. Mm-hmm. Lekin, before that, I needed a circle of people जो कि मुझ पे ट्रस्ट करें, मुझे पहचाने, और फिर मैं भी कुछ हद तक उनको पहचानूं, एंड देन वी ग्रेजुअली स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस प्लेटफॉर्म वर्कशॉप के थ्रू, इस तरह के वर्कशॉप हो जिसमें वो लोग भी बात कर सके, 30-40 पीपल गैदरिंग हो, डिस्कशन हो। और ये मेरे गोल्स हैं, बट आई फाउंड इंस्टाग्राम ए प्लेस ताकि मैं उन लोगों को जमा कर सकूं, एंड आई मेड दिस पेज ऑलमोस्ट 4.5-5 months ago. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि आएंगे लोग, और मुझे लगा आई माइट फेल, आई हैड नो आइडिया बिकॉज इट वाज समथिंग न्यू आई वाज डूइंग. You can take those initiatives. It could be virtual workshop because nowadays virtual workshop is more convenient as compared to physical workshop. Yeah, I'm thinking about that, but again, my boss is someone else, and he's almost 10 months old. So he has to give me permission. Right now, I'm finalizing my book, along with that, my research and social media. After my book, I am planning to move toward workshop, and the topics that I wanna cover in my workshop are the taboo topics. जिनके बारे में Mm-hmm. बात नहीं होती, especially around intimacy between husband and wife, जिसको बहुत ही बुरा समझा जाता है. Correct. No, you shouldn't talk about it. या होना ही नहीं चाहिए. मतलब in my clinical practice, I was shocked that most of the husband wife live like sisters and brothers. They just live in one home, and Mm. then they're ruining their marital relationship, their life. So I think I need to talk about this a lot, but in workshop, because I Definitely. want them to respond to. क्योंकि जहाँ पे जिस कल्चर में हम हैं वहाँ पे बेसिकली अरेंज मैरिज थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लव मैरिज एंड ऐसा ऐसे माशरे में हम है बेसिकली जहाँ पे इफ़ यू डू दिस काइंड ऑफ लव मैरिज एंड व्हेन यू से कि हाँ ये फलाना लड़की मैंने देखी है एंड इनके साथ मैं ताल्लुकात में हूँ फॉर लास्ट 3-4 years, तो वो जो ऑरा होता है घर का वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. Yes, love marriage, especially in some societies in Pakistan, I have a lot of मेरे जहन में इस तरह गुजर रहे हैं scary scenarios in my clinic कि वो लड़की आके, लड़कियां खास तौर पे, कि मेरी अम्मी अबू को ना पता चले, मैं क्या करूँ, या मेरे अम्मी अबू को पता चला और ये उसके consequences हुए हैं. तो दे मेड इट वेरी वेरी स्केरी. और वो, चलो लव मैरिज की बात है, अरेंज मैरिज में भी शादी के बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है. आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, पता नहीं कमरे में मैं इस तरह की भी स्टोरी सुनी है. मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि मैं ऊंचा हंस रही थी तो मेरी नंद ने मैसेज किया मेरे हस्बैंड को कि उसको बोलो आहिस्ता हंसे. तो सीरियसली हस्बैंड इसकी वाइफ. वजह इसी की वजह से जो हमने जो बात किया था कि रिश्ते जो है फ्रेजाइल हो जाते हैं, दैट्स आई गेस वन ऑफ द रीजंस कि हम देख रहे हैं इसको हमारे लाइफ एग्जांपल्स में. जब हस्बैंड वाइफ में जब इतने सारे टेंशन्स होते हैं देन दे से और दे डिमांड टू देयर पेरेंट्स कि हम अलग रहना चाहते हैं, फिर यहाँ से एक अलग मुश्किलात पैदा हो जाती है. यस एग्जैक्टली, मुझे तो शादी से पहले डिस्कस होना चाहिए. इनफैक्ट इट शुड बी शर्त फॉर वेडिंग कि मैं अलग रहना चाहती हूँ. एंड आई एम सो सैड कि 2026 में भी अभी ये मसला है कि, खैर इफ आई टॉक अबाउट दैट, a lot of people will bring this is a very sensitive topic in Pakistan के जॉइंट फैमिली. तुमने अपने माँ को छोड़ दिया है, पता नहीं, they start dramatizing it कि how could you leave her alone, उन्होंने तुम्हें बड़ा किया. It becomes a long story. So Correct. But any which ways, Yasmin, it was delight speaking with you on multiple topics, and definitely in coming days we might talk on other topics which could be women empowerment specifically with it, whether it could be on healthcare or relationship topic, or we might do some virtual workshop with some of the universities, whether it could be Mumbai or whether it could be a specific college where people or the student want to ask you some certain questions, so that would be more convenient for you to answer them. I would really love that, and I hope my boss permits me for that. And I really like talking to you. It was always my goal, and it is still, that इतना कुछ इतने साल सीखना, पढ़ना, papers देना, research Hmm. करना,
starts helping people, not just for myself. Definitely, you should do something where you could serve back to the society. आप माशरे को कुछ आप बेटर चीज आप देके जाए, जहाँ पे आप आपके बाद वो जमाना आपको याद रखे जो चीज आप देके जा रहे हैं. It was But really nice talking to you, and the opportunity you gave me for the interview and for future interviews. So I'm really happy, and I hope कि ये जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ with the baby, it actually gives a positive impact on many people. definitely, Thanks have to a you nice day. Bye. Khudafis. for listening.